जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन जय यशोदा नंदन जय व्रज जनरंजन। जय यशोदा नंदन जय जय यमुना तीर वनचारी। जय कुंज बिहारी। 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 जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय श्री श्री राधा नील माधव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की अनंत कोटि वैष्णववृंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
So we welcome all devotees from different parts of Gujarat to Rajkot. અમે ગુજરાતના અલગ અલગ પ્રદેશમાંથી આવેલા બધા ભક્તોનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. And I'm welcoming myself from Singapore to Rajkot also. હું મારી જાતને સિંગાપોરથી પણ સ્વાગત કરું છું. After 2 years of not coming, it is so nice to come to Rajkot and see all the devotees again. ઘણા બધા 2 વર્ષ પછી રાજકોટમાં આવેલો છું તો બધા ભક્તોને જોઈને આનંદ થાય છે. Without sadhu sangha, it is very difficult to make advancement in devotional service. સાધુ સંઘ વગર ભક્તિમય સેવામાં પ્રગતિ કરવી ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. Yes, we have Zoom and we have all these things, but Zoom sangha is different from sadhu sangha. આપણી પાસે ઝૂમ છે, બીજા બધા તકનીકી ઉપકરણો છે, પણ તેમ છતાંય સંઘ પ્રાપ્ત કરવામાં જે આનંદ છે એવો એમાં નથી. Today we want to glorify Lord Ram because it is Ram Navami. આજે આપણે રામ ભગવાનનું ગુણગાન ગાશું કેમ કે આજે રામનવમી છે. And therefore we want to take a nice shloka from Srimad Bhagavatam. અને એટલા માટે શ્રીમદ ભાગવતમાંથી બહુ સુંદર શ્લોક આપણે લેશું. In the 9th canto, 10th chapter, the verse is 53, 9, 10, 53. નવમો સ્કંદ 10મો અધ્યાય અને 53મો શ્લોક છે. 9, 10, 53. Nadi vyadi jaraglani આદિ વ્યાધિ જરા ગ્લાનિ dukkha shokha bhaya klamaha દુઃખ શોક ભય કથા mrityuschani chatam nase નિશ્ચાનિચ્છતા નાસ્તિ rame rajani adokshate રામે રાજનીય દોષજે rame rajani adokshate રામે રાજનીય દોષજે nadi vyadi jaraglani આદિ વ્યાધિ જરા ગ્લાનિ dukkha shokha bhaya klamaha શોક ભય કથા mrityuschani chatam nase નિશ્ચાનિચ્છતા નાસ્તિ rame rajani adokshate રામે રાજનીય દોષજે Nadi vyadhi jaraglani આદિ વ્યાધિ જરા ગ્લાનિ dukkha shokha bhaya klamaha શોક ભય કથા mrityuschani chatam nase નિશ્ચાનિચ્છતા નાસ્તિ rame rajani adokshate. Yeah, Prabhu, you want to read the translations? Yeah. अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय. अनुवाद कृपा करके बाद में दोहराइए. जब भगवान रामचंद्र इस जगत के राजा थे तो सारे शारीरिक तथा मानसिक कष्ट, रोग, बुढ़ापा, बिछो, पश्चाताप, Yeah. Did you read? We're waiting. સીડી ઉપર બેસજો આમાં. हरे कृष्ण. अनुवाद बताते हैं श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय. अनुवाद करते से दोहराइए. जब भगवान रामचंद्र इस जगत के राजा थे तो सारे शारीरिक तथा
कष्ट, रोग, बुढ़ापा, विछोह, पश्चाताप, दुख, डर तथा थकावट का नामो निशान नहीं था। यहाँ तक कि न जानने वालों के लिए मृत्यु भी नहीं थी। आप बड़े कृपा करके सुनिए। इतनी सारी सुविधाएं इसलिए विद्यमान थी क्योंकि भगवान रामचंद्र संपूर्ण जगत के राजा थे। ऐसे ही परिस्थिति इस कलयुग में भी तुरंत लागू की जा सकती है। ऐसी ही परिस्थिति इस कलयुग में भी तुरंत लागू की जा सकती है, भले ही यह युग समस्त युगों में निकृष्ट क्यों न हो। कहा गया है कि कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कृष्ण जी इस कलयुग में केवल अपने पवित्र नाम हरे कृष्ण हरे राम के रूप में अवतरित होते हैं। यदि हम अपराध रहित होकर कीर्तन करें तो इस युग में राम तथा कृष्ण अब भी उपस्थित हैं। यदि हम अपराध रहित होकर कीर्तन करें तो इस युग में राम तथा कृष्ण अब भी उपस्थित हैं। राम राज्य अत्यधिक लोकप्रिय एवं लाभदायक था और इस कलयुग में भी इस हरे कृष्ण आंदोलन के प्रसार से वैसी ही परिस्थिति तुरंत लाई जा सकती है और इस कलयुग में भी इस हरे कृष्ण आंदोलन के प्रसार से वैसी ही परिस्थिति तुरंत लाई जा सकती है। जय श्री प्रभुपाद भक्तिवेदांत प्रभुपाद की। So this shloka tells us the power of Ram Rajya. ये श्लोक हमें बताता है राम राज्य की शक्ति को। Ram Rajya was established when Lord Ram vanquished Ravana. भगवान रामचंद्र ने जब रावण का वध किया उसके बाद राम राज्य की स्थापना हुई थी। And before Lord Ram ascended to the throne, Ravana was considered to be the most powerful king in all the kingdoms, including Ayodhya. अयोध्या समेत जब तक राम भगवान नदी पर नहीं बैठे थे तब तक रावण का राज्य चलता था हर जगह। At the time when Lord Ram was traveling the world looking for Mother Sita, the whole world was actually in turbulence because of Ravana. और जब भगवान रामचंद्र सीता माता की खोज में अलग अलग जगह पे देश विदेश घूम रहे थे, वो समय में हर एक राज्य के प्रजा रावण के कोप से पीड़ित थी। And during that time, there was so much of bodily and mental suffering. और वो समय में रावण के राज्य में बहुत ही शारीरिक और मानसिक कष्ट पाए जाते थे। During this Ravan Rajya, there was old age, birth, death and disease. रावण के राज्य में बुढ़ापा था, मृत्यु थी, जन्म था और रोग थे। There was also a lot of bereavement, lamentation and distress. उनके अंदर शोक था, दुख थे, कष्ट थे। And there was so much of fear. There was always fear. And because of fear, there was fatigue. और वे हमेशा भयभीत रहते थे और भयभीत रहने के कारण वे हमेशा थके हुए रहते थे। But when Lord Ram vanquished Ravana, all these things were completely absent during Ram Rajya. लेकिन जब भगवान रामचंद्र ने रावण का वध किया तब राम राज्य में वो सभी चीजें गायब हो गई। During Lord Ram was so powerful that it is stated in Bhagavatam, there was even no death for those who did not want it. भगवान रामचंद्र का राज्य इतना शक्तिशाली था कि जिनको मृत्यु नहीं चाहिए होती थी उनको मृत्यु भी नहीं आती थी। That means you had a choice to die or not to die. इसका मतलब है कि आपको पसंद की दी जाती थी, आपको पसंद करना होता था मरना है कि नहीं मरना है। In Kali Yuga we have no choice now, isn't it? कलयुग में हमारे पास ऐसी चॉइस नहीं है। There's only one option, we will all die. एक ही हमारे लिए विकल्प है कि हमको मरना ही है। But during Lord Ram's Rajya, there was even option. Those who did not die, who did not want to die, they could continue living. किंतु राम राज्य में ऐसा सुविधा दिया जाता था कि जिनको मरना है वो ही मरते थे, जिनको नहीं मरना था वो नहीं मरते थे। Srila Prabhupada writes here in the purport that if we all chant offenselessly, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि यदि हम अपराध रहित होकर के जाप करेंगे, Rama and Krishna are present in this age. राम और कृष्ण आज भी अभी भी हमारे साथ उपस्थित हो सकते हैं। This is a very important statement from Srila Prabhupada. ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। I can see so many devotees who have come today. मैं देख सकता हूँ बहुत सारे भक्त आज आए हुए हैं। And we are very happy to have you all here. हम बहुत ही खुश हैं कि आप सभी इधर हैं।
And I see so many of you must be chanting seriously. और मैं मानता हूँ कि आप में से बहुत सारे गंभीरतापूर्वक अपना जाप करते होंगे। But sometimes after so many years of chanting, we ask ourselves why we are still not getting taste for chanting. लेकिन काफ़ी समय तक जाप करने के बाद भी हमको कभी-कभी प्रश्न होता है कि हमको जाप करने में आस्वादन क्यों नहीं आता है। Very often we chant and if we are initiated or we are chanting 16 rounds, we chant, but we are always keeping in mind, now I've done 8 rounds, now 9 malas, now 15, and then when 16 comes, finish. तो हम में से जिन्होंने भी दीक्षा ली हुई है, हम माला करते हैं, हमको ऐसे ही होता है कि हम पहले 8 माला करते हैं, फिर हमारे मन में ख्याल रहता है कि मेरी 9 माला हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 16 जैसे ही होती है वैसे हम खत्म कर देते हैं। So then, how do we get taste for chanting the holy names of the Lord? तो ऐसी परिस्थिति में हम भगवान के पवित्र नाम के प्रति आकर्षण कैसे पैदा करें? Prabhupada gives us the secret in that one line actually. तो प्रभुपाद जी यहाँ रहस्य बता रहे हैं एक ही लाइन में। We must learn to chant offenselessly. हमें अपराध रहित होकर भगवान का नाम का जाप करना चाहिए। Every morning we chant the 10 offenses to avoid, isn't it? In chanting the holy names. हर सुबह हम 10 नाम अपराध का जाप करते हैं भगवान के नाम में से अपराध से छूटने के लिए। We should be very careful to avoid those offenses. इन सभी अपराधों से बचने के लिए हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। Also, chanting offenselessly in Bhagavatam also means a very important point. भागवतम के अंदर अपराध रहित जाप करने का एक और अलग से तरीका बताया गया है। Chanting offenselessly means that we chant without any material motive. अपराध रहित जाप करना इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रकार के भौतिक हेतु के बिना जाप करना। The moment we are chanting with some motive which is material, then that chanting is considered to be offensive. जिस समय जिस क्षण हम किसी भौतिक हेतु से जाप करते हैं तो वो हमारा जाप भी भौतिक हो जाता है। But if we chant without any motive, without asking something, without saying something, without expecting something, but just chanting because we know this will please Krishna, then chanting is offenseless chanting. लेकिन यदि हम जाप करते हैं केवल ना कि किसी चीज़ का मांग करने के लिए, ना ही हमारा कुछ और प्राप्त करने के लिए, ना ही कोई इच्छा से, ना ही कुछ कहे, तब हमारा जो जाप है वो अपराध रहित कहलाता है। Best example is Ajamil actually. अजामिल उत्तम उदाहरण है इसके लिए। When Ajamil chanted Krishna's name at the end of his life, he chanted Narayana. अजामिल ने अपने जीवन के अंत समय में जब भगवान का नाम लिया तो उसने उच्चारण किया नारायण। Why did the Vishnudutas come? तो क्यों विष्णुदूत आ गए? They came because when he chanted Narayana, there was no material motive in his chanting. विष्णुदूत इसलिए आए हैं क्योंकि उसने जब जाप किया नारायण के नाम का तब उसका कोई भौतिक उद्देश्य नहीं था। He was not 50 years of doing nonsense and then last minute I chant and Krishna will save me. He did not think that way. He did not think that way. उसने ऐसा नहीं सोचा था कि 50 साल में ऐसे ही बेवकूफ़ी करूंगा और फिर अंत समय आएगा तो मैं नाम ले लूँगा, ऐसा उसने सोचकर नहीं रखा था। So therefore, Bhaktivinoda Thakur says that kind of chanting where there is no material motive, Krishna give me good wife, Krishna give me good husband, Krishna give me good children. If all this is put aside and we just chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, then there is Ram Raja. तो यदि हम भगवान का नाम का जाप लेते हैं और उसमें ऐसा नहीं मानते कि हे कृष्णा मुझे अच्छा पत्नी दे दो, मुझे अच्छा पति दे दो, मुझे अच्छे बच्चे दे दो, ऐसा न मानते हुए हम केवल हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम इस मंत्र को जपेंगे तो राम राज्य आ जाएगा। So Ram Raja is not millions of years ago. राम राज्य ऐसा नहीं है कि वो सदियों पहले था, ऐसा नहीं है। Ram Raja is a state of consciousness. वो हमारी चेतना का एक भाग है। And the faster we invoke the auspiciousness of glorifying Lord Ram, glorifying Krishna, then our chanting will become more and more offenseless. जितना ही जल्दी और शीघ्रता पूर्वक हम हमारे चेतना में भगवान के गुणगान करने का वृत्ति पैदा करेंगे उतना ही हमारा वृद्धि होगा। There are two very important verses from Bhagavatam that tells us how we will be able to chant offenselessly. दो श्लोक श्रीमद् भागवतम में बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमें बताते हैं कि किस प्रकार हम अपराध रहित होकर के जप कर सकते हैं। The first is from 12:48. पहला है 12वां स्कंद 12वां अध्याय और 48वां श्लोक। संकीर्त्यमानो भगवान् अनन्तः
shloka is very nice from Shukadeva Goswami. सुखदेव गोस्वामी के द्वारा ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। When people properly glorify the Supreme Personality of Godhead, जब लोग सही मायने में सही तरीके से पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर का गुणगान गाते हैं, or if we don't know how to glorify, we simply hear about the power of Lord Ram and Lord Krishna. अथवा तो यदि हमें पता नहीं है कि किस प्रकार गुणगान किया जाए, तो हम केवल खाली भगवान की महिमा और शक्ति के बारे में सुने, Something amazing happens to us, Bhagavatam तो says. हमारे जीवन में कुछ अद्भुत होता है, ऐसा श्रीमद् भागवतम कहता है। Pravishya Chittam. Pravishya Chittam means Krishna personally enters into our hearts. प्रविष्य चित्तम होता है हमारे साथ, उसका मतलब ये है कि कृष्ण खुद स्वयं हमारे चित्त में प्रवेश करते हैं। So it is not that Krishna sends someone to enter the heart. ऐसा नहीं है कि कृष्ण किसी और को भेजता है हमारे हृदय में प्रवेश It's not करने। that Krishna is too busy, he delegates, you go into his heart. ऐसा भी नहीं कि कृष्ण बहुत व्यस्त है और वो किसी आदमी को अपॉइंट कर देते हैं भेजने के लिए। Bhagavatam says Krishna personally enters into your heart. भागवतम कहता है कि कृष्ण खुद स्वयं व्यक्तिगत रूप में हमारे अंदर प्रवेश Now करता half है। an hour we were chanting the names of Lord Ram and Krishna, isn't it? आधे घंटे से हम कृष्ण और भगवान राम के नाम का जाप कर रहे थे। That is Sankirtyamana. इसे कहते हैं संकीर्त्यमान। That means we are glorifying Krishna. इसका मतलब है कि हम भगवान कृष्ण का गुणगान गा रहे हैं। And while we were all chanting, और जब आप सभी जाप कर रहे थे, Bhagavatam tells us Krishna has personally entered into our hearts. कृष्ण भागवतम कह रहा है कि कृष्ण खुद हमारे हृदय में प्रवेश कर लिया And he is cleaning every trace of misfortune. जितना भी हमारा दुर्भाग्य का जो कचरा है, भार है, वो सब वो साफ कर देते हैं हमारे You know, हृदय this से। cleaning is like a vacuum cleaner, you know. ये भगवान जो क्लीनिंग करते हैं वो वैक्यूम क्लीनर जैसा होता है। So Krishna is like transcendental vacuum cleaner. भगवान दिव्य वैक्यूम क्लीनर जैसे हैं। And he is cleaning our hearts because we are hearing his name. वो हमारे हृदय स्वच्छ कर रहे हैं कि क्यों? क्योंकि हम उनको सुन रहे हैं। And while we are hearing his name, we are not saying, "Oh Krishna, I'm hearing your name. Please give me good wife, give me good husband." No, we are not thinking that way. जिस समय हम भगवान का नाम श्रवण कर रहे हैं, इस समय हम ऐसा नहीं सोच रहे कि भगवान मुझे अच्छी पत्नी दे दो, अच्छा पति दे दो, Oh, my business must become better. मेरा धंधा अच्छा बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। We are just hearing about his power. हम ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे, हम केवल उनके शक्ति के बारे में सोच Then रहे he हैं। will remove the darkness in our heart like the sun removes the darkness. तब वे हमारे हृदय में से अंधकार का, अज्ञान का दूरी करेंगे, जैसे सूर्य के आने से अंधकार की दूरी होती है। And then now what are we doing? अभी हम क्या कर रहे हैं? Now we are hearing about his power. अभी हम उनकी शक्ति के बारे में सुन रहे हैं। So now also he is cleaning our hearts. तो इस समय भी वो हमारे हृदय को स्वच्छ कर रहे हैं। That is why we must chant or we must hear. इसलिए हमें रटन भी करना चाहिए और श्रवण भी करना चाहिए। Then even though we will die, तब मान लीजिए हमारा शायद मृत्यु आए भी, but when we are coming to face the death, Krishna is protecting our consciousness. हम मृत्यु को जब फेस करने जा रहे होंगे, फिर भी कृष्ण हमारे सामने आएंगे। When we are born into this world, जब हम इस दुनिया में हम जन्म लिए थे, Krishna is protecting our children's Krishna consciousness. तब हम और हमारे बच्चों की कृष्ण चेतना का रक्षा करेंगे। कृष्ण When we are not well and we are diseased, जब हमारा तबीयत ठीक नहीं होगा और हम रोगिष्ट होंगे, still Krishna is protecting our consciousness. तभी भी कृष्ण हमारी चेतना की रक्षा करेंगे। So you see, even though we are in Kali Yuga, birth, death, old age and disease cannot affect our relationship with Krishna. तो भले ही हम भौतिक जगत में होंगे या तो ये युग में होंगे, फिर भी ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि की जो उपाधियां हैं, ये हमें तकलीफ नहीं देंगी। My Guru Maharaj used to say, anyway we have to die. Better we come to Mangalarti and die than to miss Mangalarti and die. मेरे गुरु महाराज कहते थे अक्सर कि वैसे भी हम मरने वाले हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि मंगला आरती ना करें और मर जाएं। उससे अच्छा ये है, बेहतर ये है कि हम मंगला आरती करके मर जाएं। So this is how we chant offenselessly. तो इस प्रकार से हम अपराध रहित जाप करते And when हैं। we do that, then Shukadeva Goswami guarantees one very important point, which is very relevant today actually. तो जब हम ऐसा करते हैं, तो क्या होता है वो सुखदेव गोस्वामी सुंदर रीत से बता रहे हैं। In 12:50 of Srimad Bhagavatam, 12वां स्कंद 12वां अध्याय और 50वां श्लोक श्रीमद् भागवतम। Tadev Ramyam Ruchiram Navam Navam Tadev Shashvam Manasa Maho Sattvam Tadev Shokha Navashashanam Rinam Yaduttama Shloka Yasho Anugiyate
that describe the glories of Krishna or Rama. वे शब्द जो भगवान कृष्ण या राम के गुणगान करते हैं, They are attractive, वे आकर्षक होते हैं, they are relishable, वे आस्वादनीय होते हैं and Navanavam, they are always fresh. और वे हमेशा तरोताजा होते हैं। How many years you are chanting Krishna's names and Lord Ram's name? So many years, isn't it? कितने सारे सालों से, वर्षों से हम भगवान राम और कृष्ण के नाम लेते आ रहे हैं। Are you feeling tired? क्या आपको थकान महसूस होती है कभी? Do you feel you need to change the names? क्या आपको लगता है कि ये नाम बदल देने चाहिए? Now supposing we chanted Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. अभी मान लीजिए कि हम अभी जाप करेंगे कोका कोला कोका कोला कोका कोला। One mala, all around Coca-Cola, Coca-Cola. कोका कोला का पूरा एक माला करें, You will never chant it again. आप दूसरी बार उसको हाथ में नहीं लोगे, जाप Because नहीं it is करोगे। not transcendental. क्यों? क्योंकि वो शब्द दिव्य नहीं है। And if you chant Coca-Cola's name, Coca-Cola will not appear before you. और आप कोका कोला का कितना भी नाम ले लो, कोका कोला आपके सामने प्रकट नहीं होगा। So you are also thirsty. आप वैसे के वैसे प्यासे ही रह जाओगे। But if you chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, then Krishna actually appears before you. लेकिन यदि अब आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे तो कृष्ण स्वयं आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। Lord Ram has appeared today for us. आज भगवान रामचंद्र हमारे सामने प्रकट हुए। That's why Shukadeva Goswami says in the last part of Bhagavatam, any words you use to describe Krishna or Lord Ram, they are attractive, relishable, and always fresh. इसीलिए श्रीमद् भागवतम के अंत में ये श्री सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण के या राम के कोई भी गुणगानों को आप गाएंगे तो वे हमेशा आकर्षक होते हैं। And they are Manasa Maho Utsavam. और वे मन के महोत्सव के समान होते हैं। It's a perpetual festival for the mind. वे कायम स्वरूपी महोत्सव के रूप में आते हैं मन के लिए। And whatever misery you have, it will dry it up because of your chanting. जो कोई भी कठिनाई या मुसीबतें हैं हमारे अंदर, वे सभी सूख जाएगी। I'm looking at all your faces. मैं आप सभी के चेहरे देख रहा हूँ। Because you're all devotees and you're chanting, there's so much of tejas to your faces. क्योंकि आप जाप कर रहे हैं, आप भक्त हैं, इसलिए आप सभी के चेहरे पे एक तेज दिखाई देता है। Maybe some of you look a little bit tired because you traveled. आप मुसाफरी करके आए तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग थक भी गए हों। Maybe you're thinking, when will prasadam be served? आप शायद ये भी सोच रहे हो कि प्रसादम कब परोसा जाएगा। But that's okay. That is also transcendental. लेकिन वो भी ठीक है, ये भी दिव्य है। At least you're thinking of Krishna. आप कृष्ण का तो चिंतन कर रहे हैं ना। That is why for Utsava, we must come and hear about Lord Rama. We must come and hear about Krishna. इसलिए उत्सव में हमें ऐसे मिलना जुलना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए और कृष्ण या राम के बारे में श्रवण करना चाहिए। Lord Ram is not a mythical figure, Prabhus and Matajis. भगवान राम कोई खाली केवल कहानी के राजा नहीं है। Bhagavatam says he is the supreme personality of Godhead and he has 6 Aishwaryas, complete. श्रीमद् भागवतम बताता है कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। उनके पास 6 के 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण में है। Full strength is there. पूर्ण उनके अंदर बल है। Full fame is there. उनकी पूर्ण ख्याति है पूरी दुनिया Full में। wealth is there. उनके पास पूर्ण संपत्ति है। Full knowledge is there. उनके पास पूर्ण ज्ञान है। Full beauty is there. उनके पास पूर्ण सुंदरता है। And most difficult opulence, full renunciation is there. और सबसे दुष्कर जो ऐश्वर्य है वो है त्याग। And all these qualities are found in Ramayana. और ये सारी गुणवत्ताएं रामायण के अंदर पाई जाती है। And it is found specifically in Lord Ram's और pastime. ये विशेषतया भगवान श्री रामचंद्र के अंदर ये पाई जाती है। First is strength. पहला क्या है? बल। When Lord Ram went, with Vishwamitra to see Mother Sita, at that time, there was a competition to see who could carry the bow of Lord Shiva. जब भगवान राम सीता माता को देखने के लिए जा रहे थे विश्वामित्र ऋषि के साथ, तब उन्होंने उधर जाकर के देखा कि उधर एक शर्त लगी थी, एक स्पर्धा लगी थी जिसमें भगवान शिव का धनुष उठाना था। Ramayana tells us that nobody could carry the bow of Lord Shiva. So many kings tried. रामायण हमें बतलाती है कि कोई भी राजा, चाहे वो कितने भी भले ही बहादुर क्यों न थे, शक्तिशाली क्यों न थे, कोई भी भगवान शिव का धनुष उठा नहीं पाया। Actually, the competition was whoever can pick up the bow, string it, don't have to shoot them, just string and carry the bow. Then they can marry Sita. सही में स्पर्धा तो ये थी, स्वयंवर था कि जिसमें जो कोई भी व्यक्ति भगवान शिव का ये धनुष उठा पाएगा, उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा, उसको चलाना नहीं था, केवल प्रत्यंचा चढ़ाना था,
और उसको उठाएगा तो उसके साथ सीता माता का ब्याह होगा। So many great kings tried. बहुत सारे बड़े बड़े राजाओं ने भी कोशिश कर ली। Forget about stringing. They could not even pick up the bow. प्रत्यंचा चढ़ाने की तो बात ही भूल जाओ, वे उठा भी नहीं पाए थे। And most of them, they would just fall. काफी सारे लोग तो उठाने के बल करते करते गिर गए। So finally Vishwamitra said, Ram, you try. फिर अंत में विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि राम आप प्रयत्न कीजिए। Lord Ram put his hand on the middle of the bow and he effortlessly lifted it like someone would lift some garlands. भगवान रामचंद्र ने अपना हाथ धनुष के मध्य में रखा और ऐसे उठाया जैसे मानो कि हम फूल को उठाते हैं। And then he picked up the bow to everyone's amazement and he took the string and he began to pull the string on the bow to tighten it. और सबके आश्चर्य के लिए सब आश्चर्य से देख रहे थे भगवान राम को कि किस प्रकार उन्होंने सहजता से उठा नहीं लिया, केवल उन्होंने प्रत्यंचा को चढ़ाने के लिए धनुष्य को अपनी ओर खींचा। So he bent it with great force, Ramayana tells us. भगवान राम ने बहुत बलपूर्वक उसको खींचा। And the moment he bent it with great force, it snapped in the middle. तो जैसे ही उन्होंने बहुत बलपूर्वक धनुष्य को खींचा अपनी ओर, तो वो धनुष्य के मध्य में से टुकड़े हो गए। The thunderous cracking sound of the bow, right, broke the hearts of all Sita Mata's suitors. सीता माता, All the men who wanted to marry Sita Mata, when the bow broke, their heart also broke. जिस क्षण इस धनुष्य का भंग हुआ, उसी समय सीता माता को देखने के लिए या तो उनको लेके जाने के लिए जो लोग आए थे राजा, उनके हृदय भी टूट गए। And in fact, when the bow broke, the sound was so thunderous, all the kings they fell to the ground. और ये टूटने के समय, धनुष्य टूटने के समय ध्वनि इतना भयंकर था जैसे मेघ गर्जना होता है, वैसा गर्जना जैसा ध्वनि था और इसको सुन के भी लोग गिर गए। Only 4 people were standing. खाली 4 लोग खड़े थे। लक्ष्मण जी खड़े थे, King Janaka, जनक महाराज खड़े थे, Vishwamitra, विश्वामित्र ऋषि खड़े थे, Lord Ram. और भगवान राम खड़े थे। Actually, there is a 5th, Sita Mata. और 5वें भी है इसमें, वो है सीता माता। How strong is Sita Mata? All the kings fell, but she did not fall. सीता माता भी कितनी बहादुर है ये देखने की बात है, क्योंकि सभी राजा गिर गए लेकिन वो भी नहीं गिरी। And so Lord Ram then showed the whole world how powerful he is actually. और इस प्रकार भगवान रामचंद्र ने पूरी दुनिया को बताया कि वे कितने शक्तिशाली हैं। At the time of the last battle, between Ravana and Lord Ram again displayed the Aishwarya of strength. जब राम और भगवान राम और रावण का युद्ध था, वे समय में अंत में भी भगवान राम ने अपना ऐश्वर्य बताया बल का। Ravana was becoming too much troublesome, and for a while he looked too strong also. रावण बहुत ही धीरे-धीरे हावी हो जा रहा था और बहुत ही अपना बल प्रदर्शित कर रहा था। And then Lord Ram decided enough is enough now. फिर राम भगवान ने निर्णय लिया कि अभी बहुत हो गया, बस हो गया। And so he took one arrow and he empowered it with all the mantras. और फिर उन्होंने एक तीर लिया और उसके अंदर सारी शक्तियां भर दी। And he put that arrow, which was like a Brahmastra, onto the bow. और जो ब्रह्मास्त्र के समान था, वैसे तीर को उन्होंने अपने धनुष पे चढ़ाया। As he pulled back the string, the sound was bursting to the ear of all those on the battlefield. जब उन्होंने धनुष को चलाने के लिए पीछे की ओर तीर को खींचा, तो वो जो ध्वनि था, वो भी ध्वनि सबके कान फाड़ देने वाला था। And the earth began to tremble as he pulled on the arrow. भूकंप होने लगा जैसे ही वे खींचते गए अपने तीर को। All the heavens were thrown into confusion. सभी स्वर्गीय ग्रह एक भ्रमणा में गिर गए। And when the arrow was released, Ramayana says it shot out with so fast and so much of force that no one could see it move. And it pierced through the heart of Ravana and came out from behind. और भगवान राम ने जब उस तीर को छोड़ा, तो तीर का इतना फोर्स था कि किसी को दिखाई नहीं दिया और तुरंत ही रावण की छाती को भेद के बाहर निकल गया। And that last bit, as it came out, it was like a heat from thunderbolt. And Ramayana tells us that as the arrow exited, all the sins of Ravana also exited with the arrow. और जब वो तीर बाहर निकला, तो वो अग्नि के समान प्रज्वलित था और जैसे ही वो अग्नि के समान प्रज्वलित होकर के रावण की छाती को भेद करके निकला, इसका मतलब ये था कि वो रावण के सभी पापों को हार के निकला। Why is this important? क्यों ये इम्पोर्टेंट है? Because Aishwarya of strength is not just physical strength.
बल का जो ऐश्वर्य है वो केवल शारीरिक बल का ऐश्वर्य नहीं है। Krishna or Rama's Aishwarya of strength is actually spiritual strength. कृष्ण और राम के जो बल का ऐश्वर्य है वो आध्यात्मिक बल है। And when the Lord protects us with His strength, He protects our bhakti actually. जब राम या भगवान हमारे ऊपर बल का प्रयोग करते हैं तो वो हमारी भक्ति का रक्षण करते हैं। And with that one arrow, Ravana immediately fell down. एक ही तीर से रावण जमीन पे गिर गया। So there is the power of strength. ये भगवान राम के बल का ऐश्वर्य है। Now let us look at the Aishwarya of renunciation. अब हमें भगवान राम के त्याग के ऐश्वर्य को देखना है। Renunciation means to leave something behind, isn't it? त्याग का मतलब होता है किसी चीज को पीछे छोड़ देना। That is the usual idea of renunciation. यही हमारे मन में ख्याल होता है त्याग के बारे में। But in Krishna consciousness, renunciation is deeper. लेकिन कृष्ण भावनामृत के अंदर त्याग की भावना जो है वो बहुत ही गहरी है। Lord Ram, he was married to Sita Mata. भगवान राम सीता माता से उनका ब्याह हुआ था। When Surpanakha came, she was very beautiful because she was in disguise. शूर्पणखा जब आई थी तब उसने भेष पलटा किया हुआ था, वो बहुत ही सुंदरी बन के आई थी। And she wanted to seduce Lord Ram. और वो भगवान राम को बहकाना चाहती थी। And she wanted to be accepted as his wife. और वो चाहती थी कि वो भगवान राम की पत्नी भी बने। But Lord Ram very peacefully told her, I am happily married. लेकिन भगवान राम ने बहुत ही शांतिपूर्वक कहा कि मैं राजी खुशी से विवाहित हूँ। After Sita Mata was kidnapped, Lord Ram was not thinking, oh, now she's gone, maybe I should take second wife. सीता माता का अपहरण होने के बाद राम भगवान ने ऐसा कभी नहीं सोचा कि अभी मुझे दूसरा ब्याह कर लेना चाहिए। There's one restaurant in Rajkot, it is known as Second Wife. राजकोट में एक रेस्टोरेंट मैंने देखा है जिसका नाम है सेकंड वाइफ। I don't know why they put the name like that. मुझे पता नहीं उन्होंने ऐसा नाम क्यों रखा है। But Sita Mata was gone, but that did not mean that Ramchandra was not chaste to her. सीता माता भले ही उनका अपहरण हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि राम भगवान उनके प्रति वफादार नहीं थे। So actually, renunciation means that if we live, even in Grihastha ashram, if we are married, we should be chaste, we should be loyal, and we should have only one lookout, that is to serve our wife, and not that we should be here and there, because that will actually come back to hurt our devotion service. तो भले ही हम गृहस्थ आश्रम में हो, विवाहित हो, लेकिन विवाहित जीवन में भी हमारा कर्तव्य बनता है, हमारे फर्ज बनते हैं कि हम वफादार रहें और सेवा करें हमारी पत्नी की भी, ताकि हम इधर उधर न भटके, हमको इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। When Janaka gave Sita Mata away in marriage, he said one thing very important to Lord Ram. जब जनक महाराज ने सीता माता को राम भगवान को समर्पित किया, Oh noble prince, this is my daughter Sita. तब उन्होंने भगवान राम को कहा था कि हे राजकुमार, ये मेरी पुत्री है सीता। Please take her as your lifelong partner. इनको अपने आजीवन भागीदार के रूप में स्वीकार कीजिए। She is the reservoir of all auspicious qualities. वो सभी मंगलकारी गुणवत्ताओं की खान है। And be devoted to her as faithfully as you are to your shadow. हम इसको आपको अर्पण कर रहे हैं इसी प्रकार जिस प्रकार आप अपनी परछाई को स्वीकार किए हैं। So therefore, if we please Lord Ram, Mother Sita is always there to please us and bless us. तो जैसे हम भगवान राम को संतुष्ट करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे, तो माता सीता हमेशा उनके साथ ही रहती है, वे भी प्रसन्न हो जाएंगे। But Ravana did not believe in that. लेकिन रावण इसमें नहीं मानता था। Ravana had Mandodari. रावण के पास मंदोदरी थी। She was such a chaste wife. वो कितनी पतिव्रता महान नारी थी। As chaste as Sita. सीता माता के तुल्य ही वो पतिव्रता थी। But even then he had eyes for Sita. लेकिन फिर भी रावण की नजर सीता माता के ऊपर थी। So Prabhupada says, those who do not want to accept the goddess of fortune with Krishna, those who don't want to accept Sita with Lord Ram, they will end up like Ravana. तो हमें इसमें से सीखना चाहिए कि जो लोग कृष्ण को छोड़ करके भगवान की शक्ति को अपनाना चाहता है, राम को छोड़ करके उनकी शक्ति को अपनाना चाहता है, ऐसे लोगों का अंत रावण के जैसा ही होगा। So this is the value of renunciation. ये त्याग की महिमा है। When Lord Ram was told to go into exile by Kaikeyi and Dasharatha, did he cry? Did he shout? Did he complain? Did he fight?
जब भगवान राम को कैकेयी और दशरथ के द्वारा वनवास के लिए निकाला गया था, तब क्या राम भगवान रोए थे? क्या उन्होंने कभी कंप्लेन भी की क्या? In fact, Ramayana tells us he cheerfully accepted whatever that was given by the father. रामायण में बतलाती है कि पिता के द्वारा जो भी उन्हें कहा गया, उन्होंने राजी खुशी से स्वीकार किया। He left all his ornaments and gold and chariot and everything. He had nothing to do. उन्होंने अपने सभी सुवर्ण आभूषण त्याग दिए, अपने रथ भी त्याग दिए, सब कुछ त्याग दिया। That is renunciation. इसे त्याग कहते हैं। So, renunciation means that we give up anything in the service of Krishna. त्याग का मतलब है कि कृष्ण की सेवा के लिए हम कुछ भी छोड़ सकते हैं, And we use everything in the service of Krishna. और कृष्ण की सेवा के लिए हम कुछ भी उपयोग भी कर सकते हैं। Third Aishwarya is wealth. तीसरा जो ऐश्वर्य है भगवान का, वो है संपत्ति। And you all know that no one is more wealthier than Lord Ram. और आप सभी को पता है कि भगवान राम के तुल्य कोई भी धनी नहीं है। But the real wealth of Lord Ram is not all the gold and the jewelry of the world. भगवान राम की सही संपत्ति सभी दुनिया की ज्वेलरी और सोना नहीं है। It is not all the kingdoms that he conquered. उन्होंने जितने भी राज्य के ऊपर प्रभुत्व जताया था, वो भी नहीं है। That is material wealth. वो तो सभी भौतिक संपदा है। The Aishwarya of wealth is actually more deeper than that. धन का जो संपदा का जो ऐश्वर्य है, वो इससे भी गहरा है। It is nicely stated in 4:21-44 of Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवतम के 4:21-44 में कहा गया है, Gunayanam Shila Dhanam. गुणायनम शीलधनम। This Gunayanam Shila Dhanam means that our real dhanam, our real wealth is our character and our behavior. हमारा सही धन, हमारी सही संपदा क्या है? हमारा खुद का चरित्र, हमारा खुद का व्यवहार। And in Ramayana, Lord Ram displayed so much wealth of character, isn't it? और रामायण में भगवान रामचंद्र ने कितना सारा गुणवान अपना वर्तन प्रस्तुत किया है। He was the most perfect husband. वे एकदम पूर्ण परिपूर्ण पति थे। To Jatayu, he was the perfect son who actually performed the funeral rites for Jatayu. जटायु के लिए वे एक परिपूर्ण पुत्र के समान थे, जिन्होंने अपने पिता के लिए अंतिम विधि की। To Hanuman ji, he was the perfect master. हनुमान जी के लिए वे पूर्ण मालिक थे। And to his subjects, he was the perfect ruler. और अपने सभी अधीन लोगों के लिए वे हमेशा परिपूर्ण राजा थे। To Dasharatha, he was the perfect son. दशरथ के लिए वे पूर्ण पुत्र थे। And to Kaushalya Mata and Kaikeyi even, he was the perfect son. और कौशल्या और कैकेयी माता के लिए भी वे परिपूर्ण पुत्र थे। He never blamed Kaikeyi at all for anything. उन्होंने कभी कैकेयी माता को दोष नहीं दिया किसी भी चीज के लिए। And he was the exemplary brother to all his three brothers. और वे बहुत ही आदर्श भाई थे उनके सभी छोटे भाइयों के लिए। This is wealth. This is real wealth. ये सही मायने में संपदा है। And this is how we should accept the opulence of wealth. और इस प्रकार हमें संपत्ति का स्वीकार करना चाहिए। The fourth opulence is beauty. चौथी जो ऐश्वर्य है वो है सुंदरता। And Ramayana tells us that Lord Ram's beauty was no one could excel his beauty. और रामायण हमें बताती है कि भगवान राम का जो सुंदरता थी वो इतनी महान थी कि कोई भी उसको पार नहीं पा सकता था। It is stated that Lord Ram had a bluish green hue to his body actually. इसमें बताया गया है कि भगवान राम का जो विग्रह है He had lotus petal eyes. उनका जो रंग है He was very sorry. वो ब्लू और ग्रीन कलर रंग का था। उनकी आंखें कमल के जैसी थी। He had lotus petal eyes. He was very youthful. वे बहुत ही जवान दिखते थे। He was very well proportioned. वो बहुत ही उनका शरीर का ढांचा सुदृढ़ था। You know, we sometimes have short legs, long arms, big stomach. You know, face is not right. Something is wrong with us always. हमारे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है हमेशा। हमारा कोई एक पैर छोटा होता है तो एक बड़ा होता है, एक हाथ छोटा होता है तो एक बड़ा होता है, हमारा चेहरा ठीक नहीं होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है हमारे साथ। Of course, we each think that actually we are very handsome or we are very beautiful. भले ही हम अपने आप को हमेशा हैंडसम माने, सुंदर माने, लेकिन ऐसा होता नहीं है। If someone tells us, Prabhu, you look very nice, we say, no, I know. But inside we feel, yes, yes, यदि कोई कहता है हमें कि प्रभु आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, ऊपर से हम मना करते हैं नहीं नहीं नहीं, लेकिन अंदर से हमको अच्छा लगता है हाँ प्रभु। If we see mirror, definitely we will stop. लेकिन हम आईने में हमारा चेहरा देखें तो हम बंद हो जाएंगे। That's why you notice in Monday there is no mirror.
इसलिए आप नोटिस करेंगे कि मंदिर में आईने होते ही नहीं है। Because our attention should be on the Lord Himself actually. क्यों? क्योंकि हमारा आकर्षण, हमारा केंद्र कृष्ण के प्रति होना चाहिए। So there's no one more beautiful and more handsome than Lord Ram. तो इसलिए इस प्रकार भगवान राम से ज्यादा सुंदर कोई भी नहीं था। The next opulence is the opulence of knowledge. अगला जो ऐश्वर्य है वो है ज्ञान का ऐश्वर्य। Actually, Lord Ram knew exactly where Sita Mata was. सही मायने में बताया है तो राम भगवान को पता ही था कि सीता माता कहाँ है। This point in Ramayana sometimes we miss रामायण के अंदर ये पॉइंट हम कभी भूल जाते हैं, because he inspired Indra to go with Indra Devi to Lanka even before Hanuman came actually. हनुमान जी आए उससे पहले ही इंद्र को उन्होंने कहा था राम भगवान ने कि आप निद्रा देवी को भेजिए। And there he gave Indra and Nidra Devi gave comfort to Sita. फिर इंद्रदेव ने निद्रा देवी को सीता माता को दिया ताकि उनको आराम मिले। Don't forget, the Lord is super soul in all our hearts. हमें भूलना नहीं चाहिए कि भगवान हृदय में परमात्मा के रूप में तो हमारे अंदर है ही। How can he not know where Sita Mata is? तो कैसे पता नहीं चलेगा कि सीता माता कहाँ है? But if he did not engage the services of Hanumanji and Sugriva, then we will not have Ramayana actually. लेकिन यदि वो हनुमान जी और सुग्रीव जी की सेवा नहीं लेते थे तो हम रामायण कैसे आनंद उसका उठा पाते थे? Krishna could have killed all the warriors on the battle of Kurukshetra. He could have finished them. Actually, he finished them already. कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सभी को मार सकते थे वे। एक्चुअली उन्होंने मार भी दिए थे। He had killed everyone already. भगवान बोल भी रहे कि मैं ये बेहते नियता पूर्व में हूँ, मैंने सबको पहले ही मार दिया है। But if Krishna did everything, then there's no Bhagavad Gita for us. लेकिन सब कुछ कृष्ण ही करते रहते थे तो भगवद गीता आज हमारे सामने आती ही नहीं थी। So this is actually Krishna's. This is Lord Ram and Krishna's generosity to us. ये उनकी उदारता है हमारे ऊपर कि उन्होंने ऐसा किया। And those who are all knowing, they are always generous. और जो लोग ऐसा जानते हैं, जान भी लेते हैं, वे भी उदार हो जाते हैं। And last of the Aishwaryas is the Aishwarya of fame. और अभी अंतिम जो ऐश्वर्य है वो है ऐश्वर्य कीर्ति का। And no one is more famous than Lord Ram in all the three kingdoms. और भगवान राम के जैसा महिमावान और प्रसिद्ध You ask anyone about Ram Raja, everybody knows Ram. सभी लोग राम को जानते हैं, राम राज्य को जानते हैं। This is how no one is more famous than Krishna. इस प्रकार कृष्ण के अतिरिक्त और कोई ज्यादा फेमस नहीं है। And you can see that Lord Ram displayed all 6 Aishwaryas in the Ramayana. और इस प्रकार आप देख पाओगे कि भगवान राम ने इन सभी 6 ऐश्वर्य को रामायण के अंदर प्रकट किया है। This is how we prove that Lord Ram is not different from Lord Krishna. इस प्रकार हम साबित करते हैं कि भगवान राम भगवान कृष्ण से अभिन्न है। So Ramayana is not mythology, please. तो इसलिए कृपा करके जान लीजिए कि रामायण जो है वो माइथोलॉजी नहीं है, तथाकथित वार्ता नहीं है। It is a Puran. वो पुराण है। It is a recorded history of the supreme personality of God. ऐतिहासिक पुरावा है ये। Ramayana. रामायण। Ayana means journey. अयण का मतलब है प्रवास। Ramayana means the journey of Lord Ram. रामायण का मतलब है भगवान राम का प्रवास। So please, what must we do today? What should be our prayer today to Lord Ram? तो कृपया करके जानिए कि आज हमारा क्या प्रयास होना चाहिए, आज हमारी क्या प्रार्थना होनी चाहिए राम के प्रति। We should have the same prayer that Hanuman ji had to Lord Ram. हमारी वैसी ही प्रार्थना होनी चाहिए जैसी हनुमान जी ने की थी भगवान राम को। न जन्मनुदं महतो न सौभगं न भां न बुद्धि न कृतिस्तेष हेतुः तैर्याविशिष्टानपि नो वनपशर चकार सख्ये मद लक्ष्मणाग्रजः। In the 5th canto, Hanumanji and all the residents, the Vanaras, they sing this nice glorification of Lord Ram. श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में हनुमान जी और उनके सहित जितने भी वानर हैं वे सभी मिलकर के इस प्रार्थना का गान करते हैं। And so Hanumanji is telling to Lord Ram that, my dear Lord, I am so unqualified. हनुमान जी भगवान राम को बता रहे हैं कि मेरे प्रिय प्रभु, मैं तो बहुत ही निकृष्ट हूँ, अयोग्य हूँ। I don't have good birth. I'm just a monkey. मेरा कोई अच्छा कुल में जन्म नहीं है क्योंकि मैं तो वानर हूँ। I don't have good parentage. मेरा वारसा जो है वो भी अच्छा नहीं है। I don't have good education. मेरा अच्छा शिक्षा भी नहीं है। Actually, Hanumanji never studied.
हनुमान जी ने अच्छे से कभी अभ्यास नहीं किया। Hanumanji says, I can't even speak nicely. I'm only speaking monkey language, Vanara language. I cannot speak normal language. हनुमान जी कहते हैं कि मैं अच्छी भाषा भी नहीं बोल पाता हूँ, अच्छी बोली भी नहीं बोल पाता हूँ, मेरी भाषा तो वानरों की है। I cannot invite you to my house for prasadam because I don't have a house. मैं आपको मेरे घर पे प्रसाद के लिए भी नहीं बुला सकता हूँ क्योंकि मेरा घर भी नहीं है। Because I live one night in this tree and next night in another tree. एक दिन में एक झाड़ पे रहता हूँ, पेड़ पे रहता हूँ, दूसरे दिन में दूसरे पेड़ पे रहता हूँ। But despite all my disqualifications, भले ही मेरे अंदर कितनी भी त्रुटियां हैं, Jakara Satya, Bhakta Lakshmana Rajava, you have so kindly accepted me as your friend. लेकिन फिर भी आप इतने दयावान हैं कि कृपा पूर्वक आपने मुझे आपके मित्र के रूप में स्वीकार किया है। So we must have this spirit of Hanumanji तो हमारे अंदर ऐसी हनुमान जी की जैसी भावना होनी to चाहिए enter into the heart of Lord Rama. कि जिसकी वजह से हम भगवान राम के हृदय में घुस पाए, That we genuinely feel that we are disqualified. कि हम प्रामाणिकता पूर्वक अनुभूति कर पाए कि सही मायने में हम अयोग्य हैं। And therefore, we should always be ready to do service to glorify God. और इसलिए हमें तत्पर रहना चाहिए भगवान राम के गुणगान की सेवा करने। This is embodied by Hanumanji. ये हनुमान जी के द्वारा बताया गया है। I'll tell you one short story and then we end the program. मैं आपको एक छोटी वार्ता कहूँगा, कथा कहूँगा और फिर हम अंत करेंगे। You know, Sita Mata and Lakshman, sometimes they are a little bit upset with Hanumanji. आपको पता होगा कि कभी-कभी क्या होता है कि लक्ष्मण जी और सीता माता हनुमान जी के द्वारा अपसेट हो जाते हैं। Because Hanumanji was always ready to do all the services. क्योंकि हनुमान जी हमेशा हर एक प्रकार की सेवा करने के लिए तैयार रहते थे। And because he was so strong, right, he never became tired. He was always ready. So Lakshman wanted to do something, Hanuman will do it. Sita Mata wants to do something, Hanuman will do it. वे हमेशा सशक्त थे, इसलिए उनको कभी थकान नहीं लगती थी और जो कुछ भी कार्य लक्ष्मण करने चाहते थे सेवा, वो हनुमान जी कर देते थे। सीता माता जो चाहती थी सेवा करने को, वो भी हनुमान जी कर देते थे। वे थकते ही नहीं थे। Do you have such devotees in your congregation? क्या आपके कॉन्ग्रेगेशन में ऐसा कोई भक्त है हनुमान जी जैसा? I think you have. You don't know what to do with them, because they do everything. मैं जानता हूँ कि वैसे होते हैं क्योंकि वे सब कुछ कर लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि मैं क्या करूँ। So one day, Lakshman and Sita Mata decided we will do the roster, duty roster. एक दिन लक्ष्मण जी और सीता माता ने तय किया कि आज से हम सभी का सेवा का 12 फिक्स कर देंगे। Everyone has some service to Lord Rama. सबको भगवान राम की कुछ न कुछ सेवा मिलनी चाहिए। So everybody became very happy. सब लोग राजी हो गए। When Hanumanji came in, he wanted to do something, but somebody was there. He wanted to do something, somebody was there, because roster was already there. Everyone knew what to do. तो जब हनुमान जी प्रवेश किए तो हनुमान जी ने देखा कि वो जो कुछ करना चाहते थे उधर कोई व्यक्ति था, वो सेवा में व्यस्त था। दूसरी जगह गए तो उधर भी कोई व्यक्ति था, वो सेवा कर रहा था। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी और सीता जी ने टाइम टेबल बना लिया था। But he was very eager to do service. So he did not know what service to do then. लेकिन वे अत्यंत आतुर थे सेवा के लिए, उनको आतुरता थी कि मैं क्या सेवा करूं, लेकिन उनको पता नहीं था क्या करें। So Lakshman and Sita Mata thought, now this is nice. At least Hanumanji is not everywhere, तब लक्ष्मण जी और सीता माता थोड़ा खुश हो जाते हैं कि अभी हनुमान हर जगह नहीं है, हमको भी सेवा मिल रही है। Now just at that point, it was coming to midday, and Lord Ram was going to retire for the afternoon. और तब मध्याह्न का समय नजदीक आ रहा था और मध्याह्न के समय में भगवान रामचंद्र आराम के लिए थोड़ा जाना चाहते थे। And so the Lord yawned. तब भगवान ने उबासी लेना शुरू किया। The moment he opened his mouth, Hanumanji jumped in front of him and did this. जिस क्षण भगवान राम ने उबासी लेना शुरू किया, तब हनुमान जी तुरंत जंप मार करके कूद करके आ गए और उनके सामने, मुख के सामने ऐसे चुटकियां लगाई। You know why we do this, right? You've seen your older people, they do this. You know why? आपको पता होगा जो पुराने लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं जब उबासी लेते हैं। In tradition, you do that because you don't want some entity to go inside. So you do this. It wards off other entities from going into your mouth. It is inauspicious. क्यों? क्योंकि जब हम उबासी लेते हैं तो उबासी के समय कुछ हमारे अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, इसलिए वो ना करें, इसलिए हम चुटकी बजाते हैं। So Hanumanji did that, and then he sat next to Lord Ram, and he did not move. और हनुमान जी ने ये चुटकियां बजा ली भगवान राम की उबासी के रोकने के लिए और वे भगवान के नजदीक बैठ गए। So Lakshman said, "You've done your service, now go." लक्ष्मण जी ने कहा कि आपकी सेवा हो गई, खत्म हो गई, अभी आप जाओ। Hanumanji said, "No, the service is not finished." हनुमान जी ने कहा कि अभी मेरी सेवा खत्म कहाँ हुई? Lakshman said, "Why?" लक्ष्मण जी ने कहा क्यों?
And Hanuman ji said, because we don't know when next the Lord is going to be on. हनुमान जी ने कहा कि मुझे अभी पता नहीं है कि अगली बार कब भगवान राम उबासी लेंगे। Can you predict, Lakshman? क्या आप लक्ष्मण जी बता सकते हैं कि कब भगवान राम उबासी लेंगे? Sita Mata, do you know when the Lord is going to be on? क्या सीता माता आप बता सकती हैं कि कब भगवान राम उबासी लेंगे? Lakshman thought, again I will be defeated by Hanuman. लक्ष्मण जी ने कहा कि एक बार और हम हार गए हनुमान जी के सामने। That means now Hanuman had to be 24/7 ready at the lotus feet of Lord Ram. इसका मतलब ये हो गया कि 24 घंटे हनुमान जी को भगवान राम के चरणों के पास बैठना होता था। If we really want to be dedicated to Lord Ram, we should have this mood of eagerness to serve Him and serve the devotees. यदि सही मायने में हम भगवान को समर्पित होना चाहते हैं तो हमारे अंदर ऐसी हनुमान जी की जैसी समर्पण की भावना होनी चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, जय श्रील प्रभुपाद की, श्रील महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव की